अनवयकम ध्येयमत्तम चाव संसारगंतारम वितिवतेजा समझा विज्ञाए एव चरणेन चेव। परमात्माना शासननी अंदर ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष एक साधना मार्ग बताववामां आवेलो छे। ज्ञान मात्र ए शुष्क गणाय छे, ज्यारे जानेलू आचार में उतरे छे त्यारे ज्ञान ए भीनु गणाय छे। मात्र जानकारी 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 ए कल्याणનું कारण નથી એમ પરમાત્માનું શાસન વિતરાગની વાણીમાં કહેવામાં આવ્યું છે। વર્તમાન કાળમાં એક એવો સંપ્રદાય ચાલે છે, એક નવો એક ધર્મ ચાલે છે। એ વ્યક્તિએ પોતાની પુસ્તકમાં એવું લખ્યું છે કે હું વિતરાગની વાણીનો સર્વથા આદર કરું છું, વિતરાગની વાણીમાં મને કશું ખોટું દેખાતું નથી। ત્યારે અત્યારે જે पंथना संचालक मुख्य व्यक्ति है एने मारे मळवानुं थयुं त्यारे मैं एमने प्रार्थना करी, भाग्यशाળી कई रीतना तमारो मोक्ष मार्ग छे। मने एमने कह्युं के काम करो, आ एक विडियो सीडी छे ए तमारा गुरु भगवंतो साथेनी चर्चाओ छे। एमां तो तमारा साधुओ छे अने हूँ छूं, अमारी चर्चाओनी आ सीडी छे, बार काउंटर पर वेचाय पण छे, आप ग्रहण करो, आप जोई लो, पछी मने कहेजो। मैं कीधुं अमारे आ बधुं जोवानुं होय नहीं। मन के प्लीज मेहरबानी करीने अमारा भाई छे बतावशे, एक वार जोई लो। मने एम थयुं के जोई लेवुं जोईए, कारण के एमने आपणा साधुओ साथे चर्चाओ करी छे, तो एवुं तो शुं हशे। કે પછી એમના ભાઈ લઈને આવ્યા અને મને બતાવ્યું તો એમાં 3-4 સાધ્વીજી ભગવંતો સાથે એમને ચર્ચા કરેલી હતી। એમાં સાધુ આચાર્ય તો કોઈ હતા જ નહીં, 3-4 સાધ્વીજી હતા। અને એમાં સાધ્વીજી ભગવંતે જ્યારે કીધું કે અમારે ત્યાં જ્ઞાન ક્રિયાભ્યામ મોક્ષ ए ज्ञान अने क्रिया आचार ए आचार वगर अमरा तो पहलू आगम आचारांग छे। सर जीवनी काय रक्षा अने पंच महाव्रत एना वगर अमारे त्यां मोक्ष मार्ग ज नथी। तो आप एम कहो छो के आचार जोईए ज नहीं, ए लोको दीक्षा आपे तो केवी रीतना आपे? व्यक्ति उभो थाय, व्यक्ति आवे, फलाना 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 हवे दीक्षा लई रह्या छे, खत्म, आवी जाओ अंदर। कोई आवे पगे लागे, कोई आवे माळा पहेरावे, कोई आवे माळा हाथमां आपे, आવું નાનું મોટું કામ કરતા હોય, પણ મુખ્યત્વે કશું નહીં। आवे नाम बोल्या अंदर, नाम बोल्या अंदर, एनी कोई क्रिया ज नहीं। एक खमासमનું नहीं, एक क्रिया वैयाની कोई पण क्रिया नहीं। तो साधुजी भगवंते पूछ्યું ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष આવું અમારે ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે। ત્યારે ભાગ્યશાળી એમ બોલ્યા કે જ્ઞાન ક્રિયાભ્યામ મોક્ષનો અર્થ તમે સમજ્યા નથી। એ વાત સાચી છે વિતરાગની, વિતરાગની બધી વાત સાચી, પણ તમે એનો અર્થ બરાબર કર્યો નથી। તો શું અર્થ થાય? ત્યારે એમને એમ કીધું કે જ્ઞાન રૂપી ક્રિયાથી મોક્ષ થાય। શું કીધું એમને? સાધુજી ભગવતે એટલું જ્ઞાન નહીં હોય તો હત્યા કરી પાછા વળી ગયા। બીજો દિવસ થયો, મારે મળવાનું થયું,
મેં કહ્યું પુણ્યવાન, બે અજ્ઞાનીઓની ચર્ચા મેં સાંભળી. બે અજ્ઞાની, અમારા સાધ્વી પણ અજ્ઞાની અને તમે મહાજ્ઞાની. તમારા નામની આગળ લાગે છે આત્મજ્ઞાની. હું તમને મોઢે કહીશ, પાછળ નહીં કહું, તમારા મોઢે કહી રહ્યો છું. અમારે ત્યાં બે વાત બહુ જ મહત્વની છે. સૌથી અગત્યની વાત એ છે, આત્મજ્ઞાન એને જ થયું સમજવું કે જેને બીજો આત્મા બીજો લાગે નહીં. મેં એવું સાંભળ્યું છે, મારા કાને સાંભળ્યું છે. એક ભાઈએ કીધેલું મને કે એક મુસલમાન માણસ અનાયાસ એક દિવસે કોઈ તીર્થધામમાં પહોંચે છે અને એ ભક્તિ કરતા 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 એને ધ્યાન લાગી જાય છે. અને એને એવું ધ્યાન લાગી જાય છે કે 5 કલાક ક્યાં પસાર થયા એની એને ખબર નથી. હવે એમાં એવો આનંદ આવી ગયો, બનવા કાળે કદાચ એને કઈક એવી આત્મદશાની અનુભૂતિ થઈ હશે. ધંધો રોજનો ચિકન શોપ, રોજ એને બધું કરવાનું આવે. એ માણસ બીજા દિવસે દુકાન ખોલે છે રાબેતા મુજબ, પણ આજે એનાથી એ વસ્તુ થતી જ નથી. સુનમુન બેઠો છે, એના બધા નોકરો આવી ગયા, ગ્રાહકો આવી ગયા. એ સુનમુન બેઠો છે. ગ્રાહકો આવ્યા, સેટ આપો, સેટ આપો. આમ ઉભો થાય, પાછો બેસે, ઉભો થાય, આમ થડ આંસુ પડે. એ શું થઈ રહ્યું છે? કઈ કાંટ નથી, મારાથી આ થતું નથી. સાંભળજો, એને કોઈ ખબર નથી. ધર્મ અધર્મ, હિંસા અહિંસા, સદજીવ નિકાય, એને કાંઈ ખબર નથી. એ લોકો તો તમારા ઘરમાં તમે શાકભાજીનું કામ કરો, ત્યાં લોકો આ કામ કરતા હોય. એટલું નોર્મલ એ લોકો માટે હોય છે. પણ કઈ ખબર ન હોવા છતાં પણ એ ધડ આંસુઓ પડી જાય છે. એ કાર્ય કરી શકતો નથી. ધેટ મીન્સ કે એને કઈક ઝાંખી થઈ છે. અમારે ત્યાં આત્મજ્ઞાની એ જ છે જેને સર્વ આત્મા સાથેનો અભેદ થઈ જાય છે. એ બીજો છે છતાં એને બીજો લાગતો નથી. કાર્લ માર્ક્સ જે થઈ ગયા એમ લખે છે, અધર ઇઝ હેલ, બીજું એ નર્ક છે. પરમાત્મા મહાવીરદેવ કહે છે, અધર નેઝ ઇઝ હેલ, બીજામાં બીજા પણું મૂકો એ નર્ક છે. બીજા પણું નહીં મૂકવાનું, બીજું તો છે જ. મારો આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશી અલગ છે, તમારો અલગ છે, પણ મારો ને તમારો એવો જે ભેદ થાય છે એ નર્ક છે. હું અને તું, હું અને તું. આ દુનિયા બહુ અદ્ભુત છે અને અનુભૂતિનું લેવલ તો ગજબનું છે. એમાં તેમ કહેવાય છે, આચરણમાં આવી ગયું આગળ, જમ તમ હંતુમ ઈચ્છસી તમ તુબ્બહી જાણો. શું લખ્યું? ગજબની વાત લખી, ગજબની. પરમાત્મા મહાવીર દેવે આચરણમાં જે વાત લખી, ગજબની વાત લખી. જમ તમ હંતુમ ઈચ્છસી તમ તુબ્બહી જાણો. તું જેને હનવાય માગે છે એ તું પોતે છે. પછી એક વાત આવી હતી, પરમાત્મા મહાવીર કીડી પર પગ કેમ ના મૂકે? મારા પોતા પર કેમ? મારા પોતા પર. તો આચાર્યમાં લખ્યું છે એવું કે જમ તમ અંતુમ ઈચ્છસી તમ તુબ્બહી જાણો. પછી આગળ લખ્યું છે, મારનાર તું, મરનાર તું, બચાવનાર તું, બચનાર તું, જણાવનાર તું, જાણનાર તું. યાર ગજબ ઘટના થઈ ગઈ.
ગજબ ઘટના થઈ. આપનાર તું લેનાર તું, આ શબ્દોની પાછળ એટલા મોટા રહસ્યો, એટલી મોટી સાયકોલોજી છે. ગીવ એન્ડ ટેક, રૂલ્સ ઓફ યુનિવર્સ. ગીવ એન્ડ ટેક, રૂલ્સ ઓફ યુનિવર્સ. આપો ને લો, આવો એક કુદરતનો કાયદો છે, આખા યુનિવર્સનો કાયદો છે. આપો ને લો એટલે શું? આપવું તે જ લેવું છે યાર. આપનાર તું, લેનાર તું. જે સમયે તે આપ્યું તે સમયે જ તે પ્રાપ્ત કર્યું છે. કેટલી ગજબની વાત છે આની અંદર. જે સમયે તે આપ્યું. આ સિમ્પલ લો છે. જે જોઈએ છે તે આપો. બીજો કોઈ વે નથી મેળવવાનો. કાંઈ પણ મેળવવું હોય એનો એકમાત્ર કોઈ માર્ગ હોય તો એ આપવું છે. એ સિવાય કોઈ માર્ગ નથી. પૈસા આપો, પૈસા મળે. પ્રેમ આપો, પ્રેમ મળે. અહિંસા આપો, અહિંસા મળે. અને ઓન સ્પોટ મળે, એટ ધ ટાઈમ મળે. એટ ધ ટાઈમ મળે. આમાં કોઈ અબાધાકાર વચ્ચે લાવશો નહીં. આમાં કોઈ અબાધાકાર લાવવાનો નહીં. જે સમય આપો એ સમય મળે છે. એ સમયની વાત કરું. જે સમય આપો એ સમયે મળે છે. પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં થોડું સમજવાની કોશિશ કરવી જરૂરી છે. જે સમયે તમે જ્ઞાન આપો છો એ સમયે તમને જ્ઞાન મળે છે. જ્ઞાન આપવાથી જ્ઞાન મળે છે. ન્યાય આપવાથી ન્યાય મળે છે. ભલું કરવાથી જ ભલું થાય છે. આ રૂલ્સ ઓફ યુનિવર્સ છે. આમાં કોઈ ધર્મ આવતો નથી. तुम्हारे पैरों की चुभन भी जरूर कम होगी. किसी गैर के काऊ से पाऊ से कांटा निकाल कर देखो. तुम्हारे पैरों की चुभन भी जरूर कम होगी. किसी गैर के पाऊ से कांटा निकाल कर देखो. તમારા પગનો ને બીજાના પગનો ઈલાજ કરો સાહેબ. બીજાના પગનો ઈલાજ કરો. તમે એકમેક થઈને કરો. ભાઈ તબિયત બગડી છે, 5 જીવ છોડાવી આવો. સારી વાત છે. 5 જીવ છોડાવશો તમારા સ્વાસ્થ્ય પર સારી અસર થશે એવું ના નહીં પાડું. પણ તમે 5 જીવો સાથેની એકતા કરશો ને તત્કાળ અસર થશે. એકતા કરો. તમારું શરીર બગડ્યું, તમને તાવ આવ્યો, ચોક્કસ પ્રકારે હશે જ કે મેં કઈ કાલે ખોટું ખાધું હશે. એ બી હશે જ, હું ના નહીં પાડું. તમને લૂઝ મોશન થયા, એમાં કાલે ભજીયા ખાધા હશે, આવું હશે, હું ના નહીં પાડું. પણ આ એક વાત છે, સાંભળજો મારી. આ એક વાત છે. એક લાઈન પર જે ચાલીએ છીએ આપણે કે તાવ આવ્યાનું આ કારણ ને, ચક્કર આવ્યાનું આ કારણ ને, શરીર થાકવાનું આ કારણ. પણ એક બીજી બી એક અદ્ભુત યાત્રા છે કે મેં કોઈનું બગાડ્યું માટે જ બગડ્યું. આ બી શોધી કાઢો. હું તમને હાર્ટલી રિક્વેસ્ટ કરું છું, મારા થકી બીજાને અન્યાય થયો છે. સૌથી પહેલી વાત, મેં કોઈને ન્યાય કર્યો. આગે આઈએ, આગે આઈએ. પોખરણ સર, नहीं खुशी नहीं, खुशी नहीं. इधर आगे आइए, आइए. ઈસરોના પ્રમુખ સાયન્ટિસ્ટ સુરેન્દ્રભાઈ પોખરણા સાહેબ છે, જે આજે આપણી વચ્ચે બેઠા છે આવીને. ત્યારે तुम्हारे पैरों की चुभन भी जरूर कम होगी. किसी गैर के पांवों से कांटा निकाल कर देखो. हमें हमारी बધી બીમારીનો ઈલાજ, અમે આ ખાધું આ ન ખાધું, આશ્રમ પડ્યો વગેરે જે કરવું હોય તે કરજો. મારી ના નથી, પણ એક અલગ દુનિયા છે, અલગ દ્રષ્ટિ છે. શોધવાનો પ્રયત્ન શરૂ કરી દઈએ. મેં ક્યાંય કોઈને અન્યાય કર્યો છે?
મનથી કરેલાનું પણ કાયાથી આવે? સાહેબ મનથી જ આવે એ તો ફિક્સ છે. ના, એટલે મેં મનથી કર્યો તો મને માત્ર કાયાથી કરવું પડ્યું હોય તો ન પણ આવે. માત્ર કાયાથી કરવું પડ્યું હોય તો એ ઇફેક્ટ નો પણ આવે, બની શકે છે. જી સર. જ્યાં જ્યાં ધુમાડો ત્યાં ત્યાં આગ, પણ જ્યાં જ્યાં આગ ત્યાં ત્યાં ધુમાડો તેવું નહીં. કાયાથી કર્યું હોય તો અને મનથી ન કર્યું હોય તો શરીર પર ઇફેક્ટ ન પણ આવે. કાયાથી ન કર્યું હોય અને મનથી કર્યું હોય તો આવે ને આવે જ. આવે ને આવે. માનસિક રીતે અમે બીજાની હિંસાઓનો કેટલો વિચાર કરીએ છીએ. હું ખૂબ સાચું કહેવા માંગુ છું. અમે અમારા ભીતરના વાઇબ્રેશનને, અમે અમારી શાંતિ અને મજાના સ્પંદનને જો વ્યવસ્થિત ઓળખવાનો પ્રયાસ કરીએ. શું છે કે ચાદર એટલી બધી કાળી છે ને કે પેલી કાળી સાઈ પણ ધોરાય ને તો દેખાતી જ નથી. મેલું મસોતું હોય એના પર કાળું ડાઘ કેવી રીતે દેખાય? સફેદ હોય તો દેખાય ને. મહાત્મા બપોરે સ્વાધ્યાયમાં બેઠા, મન ન લાગ્યું, ગુરુને વાત કરી કે ગુરુજી આજે સ્વાધ્યાયમાં મન લાગતું નથી. તો ગુરુજી વિચારે છે, એમ નથી વિચારતા કે તાર વધારે ખવાઈ ગયું છે, આ તાવ આવે છે, આવું કશું ગુરુ વિચારતા જ નથી. એ લાઈન અમારે ત્યાં છે જ નહીં. વિભૂષાવત્યમ ભિક્ષુ, સાધુને કોઈ પણ પ્રકારના વિભૂષાનો જેમ ઇનકાર છે એમ સાધુને કોઈ પણ પ્રકારના ઉપચારનો ઇનકાર છે કે હે સાધુ તારે દવા જ નહીં લેવાની. હે સાધુ તારે દવા નહીં લેવાની. એ વેજનો રોંગ પાથ છે આખો. તારે એ જ કરવાનું કે તારી અંદરથી કોઈ એવું સ્પંદન, કોઈ વાઇબ્રેશન પસાર થયું છે જેમાં ઈર્ષ્યા ભરેલી હોય, જેમાં અહંકાર ભરેલો હોય, જેમાં લોભ ભરેલો હોય, કુલ મળીને બીજા પ્રત્યેનો અભાવ ભરેલો હોય, અન્યાય ભરેલો હોય, હિંસા ભરેલી હોય, આવું કઈ તારામાં પડ્યું છે તો જ તું હેરાન થાય. બાકી તો હેરાન થાય જ નહીં. ગુરુએ પૂછ્યું, ગુરુએ એ ન પૂછ્યું વધારે ખવાઈ ગયું છે. ગુરુએ એ પૂછ્યું કે શું ખવાઈ ગયું છે અને કેવું ખવાઈ ગયું છે. શું પૂછ્યું ગુરુએ? કેવું ખવાઈ ગયું છે, શું ખવાઈ ગયું છે. ગોચરી ક્યાંથી લાવ્યા હતા? એમાં કોઈ ગોચરીમાં દોષ લાગ્યો છે? તપાસ કરતા ખબર પડી કે ખીર લાવ્યો તો ચોખા બાસમતી. ગુરુનું જ્ઞાન પહોંચ્યું કે જે રીતનો પરિવાર છે એ રીતના બાસમતી ચોખા હોય નહીં. તપાસ કરતા ખબર પડી કે દેરાસરમાં દર્શન કરવા ગયેલા અને એમાં ચોખા બાસમતી સાથીઓ જોયો શેઠે. એને એમ થયું કે આ ચોખા બાસમતી છે, ઊંચી ક્વોલિટી છે, પૂજારી ભેગા કરી નાખશે ભંડારમાં એટલે બધા અંદર ભેગા થઈ જવાના. એના કરતા લાવ આ ચોખા હું લઈ લઉં. અને એ ચોખાનું માપ કર્યું તો પાસેર હશે, અડધો શેર હશે. એને 1 કિલોના બજારમાં ચાલતા ભાવના પૈસા નાખ્યા. સમજાય છે વાત? કેટલા રહસ્યો હોય છે. 1 કિલોના પૈસા બજારમાં જે ભાવ ચાલે છે અત્યારે, આજે એ પૈસા નાખ્યા. છતાં પણ વાત આમ તેમ લઈ જવી નથી. વાતના મુદ્દા પર ચાલવું છે. ગુરુને શિષ્યને સ્વાધ્યાયમાં મન ન લાગે એનું કારણ ક્યાંક અન્યાય થયો છે, ક્યાંક ચોરી થઈ છે. અને આ એક પ્રકારે દેવદ્રવ્યની ચોરી કહેવાય. તમને જાણીને આશ્ચર્ય લાગશે. અમારું કોઈ પણ પ્રકારે હિત જોખમાય છે.
શારીરિક જો હિત, માનસિક હિત, પારિવારિક હિત, આર્થિક હિત, કોઈ પણ પ્રકાર હિત જોખમાય છે એનું એકમાત્ર કારણ હિંસા છે, યાદ રાખવું. અત્યારે પારણા ભવનની અંદર 3 દિવસનું એક સમસ્ત મહાજનનું એક આયોજન ચાલી રહ્યું છે. હું તમને સૌને કહું છું કે એકવાર ત્યાં જવા જેવું છે. હું કાલે જઈ આવ્યો છું એટલે કહું છું. અહિંસક ઉત્પાદનો વેચે છે એ તો એક વસ્તુ છે જ, અને થાય તો તમારે એના નંબરો લઈ અને એ જ ઉત્પાદનો વાપરવા જોઈએ. ઘણા કારણો છે. એમાં હિંસાનું એક કારણ છે, ભારતની ઉન્નતિનું એક કારણ છે, અમારી માન્યતાઓ જીવંત થાય, અમારા પશુઓ જીવંત થાય, વ્યવસ્થાઓ જીવંત થાય, આવા અનેક કારણો છે. પણ એની પછવાડે એક એક્ઝિબિશન છે જેમાં માત્ર લાગ્યા છે બેનરો. હું તમને સૌને કહું છું, તમે જાઓ, એ બેનરો વાંચો, એના એ તત્વો તમે ડાયરીમાં ઉતારો, તમારા સંતાનોને સમજાવવામાં તમને ખૂબ કામ લાગશે. આવા વાક્યો બનાવવા, આ લખવા, છપાવવા એ નિખિલભાઈ ને, કિસને કિયા है? निखिल शाह ने किया है, જે આમની ટીમમાં છે. એક તરવરિયો યુવાન છે, પરંતુ એ અહિંસા માટે, શાકાહાર માટે જે દિવસ રાત મહેનત કરે છે માણસ, એને આખું આ કામ કર્યું છે. એને કોઈ પણ પ્રકારના પૈસાની પડી નથી. એ ફ્રી ઓફ ચાર્જ ખાલી સેવા કરે છે. એ ખાલી સેવા કરે છે. અને આપણને જોવા જવામાં તકલીફ પડે છે. બધા જોવા જાઓ, તમને ખ્યાલ આવે. બધાનું મૂળ કારણ હિંસા છે. અહીંયા છે પોખરણા સાહેબ, આમનું એક મિશન છે. મેં તમને એક વસ્તુ કીધેલી યાદ છે? આખી દુનિયા વિજ્ઞાન પૂછતું આવે અને સાયન્ટિસ્ટો ધર્મ પૂછતા આવે. હા, યાદ છે? आ रहा साइंटिस्ट, एक बार खड़े हो जाइए, तालियों तालती વધાવી લો. मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने साल से साइंस में काम कर रहे हैं? लगभग 40 साल. 40 साल से. इसरो में आपका क्या रोल था? इधर घूम के सबको समझाइए. इसरो में आपका क्या रोल रहा? इसरो में हमारा रोल था कि जो सैटेलाइट छोड़ते हैं उस सैटेलाइट के अंदर कैमरे लगे हुए होते हैं, बहुत पावरफुल कैमरे होते हैं. तो उन कैमरों से हम जमीन का फोटो ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जमीन पे कहाँ जंगल है, कहाँ पे खेती हो रही है, कहाँ पे पानी है, तालाब है, कहाँ पे मतलब ये ग्रासलैंड है, खराब रंग की जमीन है, पहाड़ है, उसकी सबको हम जो वो अध्ययन कर सकते हैं. तो मेरे को आपको बताते हुए खुशी है कि गुजरात के अंदर कितनी खेती होती है. यानी गुजरात में आप जानते हैं कि मूंगफली, इधर सौराष्ट्र के अंदर मूंगफली होती है और रुई होती है, कॉटन होती है. तो कितनी रुई होती है, कितनी मूंगफली होती है, उसका उत्पादन का पता लगाना. तो आप जानते हैं कि जो पटवारी होते हैं, पटवारी भी ये काम करते हैं, लेकिन उनका काम करने में उनको टाइम लगता है. सब वो डेटा इकट्ठा करके सरकार को भेजने में दिक्कत आती है. तो हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट के जो फोटो आता है उस फोटो का डिजिटल एनालिसिस करते हैं कंप्यूटर से, और ये पता लगाते हैं कि इसके अंदर अगले मतलब इस बार कितना क्षेत्रफल है, उसके अंदर रुई हो रही है, कितने क्षेत्रफल में मूंगफली हो रही है. तो मात्र यही काम है कि कुछ और भी काम होता है आपका? उसके अलावा भी दूसरे भी होते हैं. काम कौन कौन से होते हैं उसमें? ये बताते हैं. मतलब तो एक दूसरा काम ये है उसके अंदर, इसरो के अंदर, ये वो आजकल एक वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि विकास जो हो रहा है वो विकास ऐसा होना चाहिए कि वो है जो उसको आगे भी किया जा सके. ऐसा भी हमने काम किया था. उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई थी कि पूरे भारत के अंदर जितने खेती होती है, जितने जंगल है, जितना पानी है, वो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है. इन सबके सामने मेरा आपसे एक प्रश्न है. इन सबके सामने आप 40 साल से वैज्ञानिक है और इसरो में आप प्रमुख रहे हुए हैं, इतना आपने काम किया है, तो इस सबके सामने मेरा प्रश्न है, अगर सही जवाब भी आपसे चाहिए, आप कोई मैं बैठा हूँ उसकी वो सवाल
आपको जो लगे वो कहना, बराबर है। मैं पूछने की हिम्मत करता हूँ आज। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने इतना विज्ञान में काम किया, नासा में भी आप गए हैं, वहाँ जहाँ भी आप, हाँ, तो भंडारी साहब वहाँ गए, अच्छा, तो आपने इतना काम किया है, आप विज्ञान को महान मानते या धर्म को महान मानते हैं? मुझे इस बात का उत्तर देने में तनिक भी संदेह नहीं है, तनिक भी संदेह नहीं है। और ये है कि जो जैन धर्म है, मैं आपको बहुत खास मतलब इतना स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इसरो का नाम मेरे पीछे लगा हुआ है। इसरो का वैज्ञानिक कुछ बोलता है बहुत सोच समझ के बोलता है। तो ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो आधुनिक विज्ञान है, जिसका इतना बोलबाला है, वो अपने जैन धर्म में जो केवल ज्ञान की जो बात की जाती है, अवधि ज्ञान की बात की जाती है, जो मन पर्या ज्ञान की बात की जाती है, वो अभी विज्ञान में नहीं है। अब धीरे धीरे कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, पर उनका संख्या 1%, आधा % है। लेकिन अब धीरे धीरे मैंने इसके ऊपर 50 साल पहले बाबू एक लेख लिखा था। 50 साल पहले अहमदाबाद की एक संस्था है, एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अंदर एक वो मैगजीन निकलती थी, उसमें वो लेख छपा था। 50 साल पहले मैंने लिखा था, उसका शीर्षक था कन्वर्जेंस ऑफ द मॉडर्न साइंस टुवर्ड्स जैनिज्म। यानी विज्ञान अभी धीरे धीरे खिसकता हुआ जैन धर्म की ओर आ रहा है। बहुत जो अमेरिकन साइंटिस्ट है, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी मैं, वो भी कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है। वाह वाह। और अभी एरिजोना यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक जो हर साल वो एक कॉन्फ्रेंस करते हैं पूरे विश्व के अलग अलग देशों के अंदर। 1994 मतलब 94 से वो शुरू हो रही थी, अभी 23वीं कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब 23वीं या 27वीं। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर साल 500 से 1000 वैज्ञानिक आते हैं, और वो आत्मा क्या होती है, चेतना क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, इसके ऊपर रिसर्च जो करते हैं, उसके वो पेपर उसमें प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने भी मेरे 2 पेपर उसमें हैं। 2014 में था एक पेपर, और अभी एक 2022 में था। तो 2022 में जो पेपर था मेरा, वो इसके ऊपर था कि अपने यहाँ पे आत्मा की 47 शक्तियों की बात की गई है, कि आत्मा की 47 शक्तियाँ होती है। ये 47 शक्तियाँ क्या होती है, ये आपको शायद आश्चर्य करेंगे। मैं गुजराती बोलता नहीं हूँ, पर गुजराती पढ़ सकता हूँ। तो मेरे को कांजी स्वामी द्वारा के वो व्याख्यान देते थे 47 शक्तियों के ऊपर। उसके आधार पर पे एक पुस्तक मिली, वो व्याख्यान हिंदी में देते थे, लेकिन जो गुजराती पाठक है उनको पढ़ने के लिए वो गुजराती में लिखी हुई थी किताब। लेकिन वो उसको आप मतलब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हिंदी में है, जो है स्क्रिप्ट उसकी गुजराती थी। उसमें 47 शक्तियों का जो वर्णन किया गया था, वो लगभग 550 पेज में था। उसका शीर्षक था प्रवचन नवनी, उस पुस्तक का नाम। तो उस पुस्तक को मैंने ये अपने जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तब मैंने उसको 3 बार पढ़ा था, और बहुत ध्यान से पढ़ा था। और अभी उसके पढ़ के मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, वो निष्कर्ष ये है कि अभी जिस चीज़ को विज्ञान ढूंढ रहा है कि एक इंफॉर्मेशन लेयर भी है ब्रह्मांड के अंदर, तो वो जो इंफॉर्मेशन लेयर है वो हमारी जैन धर्म की आत्मा है, जिसकी जो 47 शक्तियाँ हैं, उससे हमने मैंने ये सिद्ध किया है। मतलब, और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, अभी मैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो आत्मा है एक वो होलोग्राम की तरह है। इसको कहते हैं कि ये मतलब फॉर्मलेस है, यानी अपने को दिखती नहीं है, लेकिन उसमें ज्ञान भरा हुआ है। आप होलोग्राम जानते हैं, आपको एक दो तो ये होलोग्राम क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि 2014 में जब चुनाव हुए थे, तब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बहुत डिमांड थी कि उनको हमारे यहाँ भेजो, हमारे यहाँ भेजो, व्याख्यान के लिए, भाषण के लिए। मतलब तो उस पार्टी के पास इतना टाइम नहीं था उनके पास, तो उनका होलोग्राम बना के भेज दिया। मतलब तो होलोग्राम ऐसा होता है कि वो लगता है कि सामने मोदी साहब भी खड़े हैं, और इस ढंग से ये तो बहुत
बहुत साधारण सा उदाहरण है, पर इससे ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स को क्वांटम होलोग्राम कहते हैं। वो क्वांटम होलोग्राम जैसा है आत्मा, मेरे को कोई संदेह नहीं है। और उससे हम केवल ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं, अवधि ज्ञान क्या है, मन पर्याय ज्ञान क्या है। अब वैज्ञानिक उस दिशा में आ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही। 50 साल पहले आपने लिखा था कि विज्ञान धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ये आपने 40 साल तो इसमें सेवा की साइंस में, तो अभी आपका यही मानना है कि कुछ और? इससे और आगे कहूंगा कि अब मेरे को कोई संदेह नहीं है। जब लिखा था मैंने 50 साल पहले, उस समय मतलब फिर भी थोड़ा मतलब था कि ये सही है क्या है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। आज की तारीख में मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, और मैं आपको बहुत कांच की तरह साफ है, स्पष्ट है कि जो हमारे 5 महाव्रत हैं, उन 5 महाव्रतों का पालन करके ही इस पृथ्वी को, जो पर्यावरण में जब समस्या आ रही है, और पृथ्वी क्या है कि छठे महाविनाश की ओर जा रही है। जो सिचुएशन आपने देखी है, कितनी गर्मी पड़ रही है, कहीं पे मतलब बाढ़ आ रही है, कहीं बेमौसम बरसात हो रही है, कहीं पर है जब आग लग रही है कैलिफोर्निया के जंगलों में, ये सब उसके छोटे छोटे नमूने हैं। बहुत ही गजब की बात इसरो के प्रमुख साइंटिस्ट सुरेंद्र भाई पोखरना जी कह रहे हैं। उनकी आवाज नहीं पहुंची होगी आपके तक, संक्षिप्त में कह रहा हूं। वो ये कहने जा रहे हैं कि मेरे पीछे इसरो का लेबल लगा हुआ है, इसलिए जो हम बोलते हैं वो बहुत ही सोच के प्रमाणभूत बात करते हैं। उनका एक कहना है कि पूरा विज्ञान जो है वो धर्म की ओर आगे जा रहा है। 50 साल पहले लिखा था, वो तब कुछ संदेह भी था, आज ये बात निसंदेह है। उन्होंने बहुत गजब की बात जो कही अभी, आत्मा, उसकी शक्तियों के बारे में उनको जो अनुभव हो रहा है, उनका विश्वास है आत्मा नाम की चीज है, होलोग्राम की तरह अद्भुत उनका व्यवहार रहता है। उन्होंने और एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो अभी वो बोल रहे हैं महाराज साहब, खूब समझिएगा। इसरो के साइंटिस्ट आज हमारे सामने खड़े, और उन्होंने जो बात अभी बोली है, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती है। हाँ, मैं कहता हूँ क्या बात बोली उन्होंने ये बोला है कि पंच महाव्रत, अब सोचिएगा वो क्या कहने जा रहे हैं। पंच महाव्रत है, जो पंच महाव्रत यथा तथ्य जैसा है वैसा अद्भुत पालन करता है, और पंच महाव्रतधारियों से ही ये पृथ्वी का पर्यावरण बचेगा, पृथ्वी बचेगी, विश्व बचेगी, जगत का कल्याण होगा। ये बात आज वो कह रहे हैं। ये मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर इतना नुकसान हो चुका है, इतना नुकसान हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वैज्ञानिक मतलब इतने दुखी हैं, बोले हमने क्या किया ये, मतलब हमने ऐसे औजार बना दिए, ऐसे यंत्र बना दिए, ऐसे इंडस्ट्रीज बना दी, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, लेकिन कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि उसको बनाने में कितने जीव। वैज्ञानिक बहुत दुखी है, उनका शब्द सुनिए आप। ये यंत्रों को बना के वैज्ञानिक बहुत दुखी है कि हमने ये यंत्र उपग्रह ये जो बनाए हैं दुनिया को भौतिकता की ओर ले जाने के लिए, दुनिया का विनाश करने के लिए, ये बना करके वैज्ञानिक बहुत दुखी है। अब देखिए आपकी, जैसे मैं इसरो में था, वहाँ पे रॉकेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो सैटेलाइट छोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है, और सब साइंटिस्ट देखते हैं कि वो ठीक ढंग से जा रहा नहीं जा रहा है, जिस एंगल पे जाना चाहिए जा रहा नहीं जा रहा है, जिस पॉइंट के थ्रू होकर जाना चाहिए वो जा रहा नहीं जा रहा है। मैं भी देखता था, लेकिन मैं ऊपर के साथ साथ नीचे भी देखता था। और नीचे क्या देखता था? नीचे ये देखता था कि नीचे गरम गरम गैसें निकल रही है, जिनका तापमान होता है 600 डिग्री से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप जानते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी गर्म होता है, आप उसमें अंगुली डालोगे तो आपको एकदम बाहर निकालोगे कि मेरा हाथ जलने जाएगा। अब जैन धर्म में बचपन में पढ़ाया गया है कि वायु पाए के जीव होते हैं, तो मेरा दिमाग में प्रश्न आता था कि रॉकेट तो ऊपर जा रहा है, पर जो गर्म गैसें नीचे आ रही है, उन गैसों से कितने जीव मर रहे हैं, कितनी वायु काय के जीव मर रहे हैं, कितने वायरस मर रहे हैं, कितने बैक्टीरिया मर रहे हैं।
इसका कोई उत्तर न इसरो का साइंटिस्ट दे पाया, न नासा का साइंटिस्ट दे पाया। न दुनिया के सारे साइंटिस्ट ऊपर देख रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र भाई पोखरनाथ साहब ने नीचे देखा। मैं मानता हूं कि आप जन्म से जैन है और जीवदया के प्रेमी है। इस संस्कार ने आपको पीछे पलटकर दुनिया जहां नहीं देख रही है वहां देखने को मजबूर किया, और आज आपके भीतर में एक वेदना है कि पृथ्वी को बचाने के लिए क्या किया जाए। इनका कहना है वैज्ञानिकों ने साथ में मिलकर सोचा है कि पिछले 55 करोड़ वर्षों के अंदर 5 बार वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का प्रलय हो चुका है। ये छठी बार जो भी प्रलय होने जा रहा है 20 से 30 साल के अंदर अंदर, बराबर ना? नहीं, लगभग 100 साल के अंदर। 100 साल के अंदर अंदर नहीं, ये जो कह रहे अर्कांटिका का प्रलय आएगा वो। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ मैं आपको। अभी गूगल पे डेटा है, उसके हिसाब से कह रहा हूँ मैं आपको कि हर साल अभी विश्व के अंदर 25,000 जो जीवों की प्रजातियां हैं, बायोलॉजिकल स्पेसीज, वो खत्म हो रही है। जैसे आप जानते हैं बड़े शहरों में आजकल बम्बई कलकत्ता में जाओ तो चींटी देखने को नहीं मिलती, मकोड़ा देखने को नहीं मिलता, मक्खी देखने को नहीं मिलती, मिट्टू देखने को नहीं मिलता, तितलियां देखने को नहीं मिलती, बिच्छू देखने को नहीं मिलते, सांप देखने को नहीं मिलते, सब सांप हो गए। तो 25,000 ऐसी प्रजातियां हर साल खत्म हो रही है विश्व में। इसका मतलब काउंट कर रहे हैं जो साइंटिस्ट गंभीर हैं इन चीजों के बारे में, प्रजातियां खत्म हो रही है। दूसरा सुनिए, इससे भी ज्यादा खतरनाक वो ये है कि हर साल 15,000 करोड़ जीवों की हत्या हो रही है। कितने? 15,000 करोड़, 150 बिलियन उन जीवों की हत्या हर साल हो रही है मांसाहार के लिए, और समुद्री जीव सबसे ज्यादा मर रहे हैं। 15,000 करोड़ मांसाहार के लिए एवरी ईयर। सांभो छो? एवरी ईयर, हर साल। और आगे सुनिए, इससे भी खराब वो ये है कि 1970 से लेकर के 2020 तक, यानी 50 साल के अंदर पृथ्वी के 60% जीव ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। जीव जातियां नहीं भाई, कुल जीवों की संख्या, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बहुत ही इतनी खराब है, मैं आपको मतलब बता नहीं सकता। તમે સાંભળ્યું? 1970 થી 2020 ની આ 50 વર્ષમાં આ નોન વર્લ્ડ ની અંદર જેટલા જીવો, જીતુભાઈ, જેટલા જીવો હતા એ 60% जीवो खत्म થઈ ગયા છે। 40% बचे हैं अभी। और जब ये 5 महाविनाश हुए थे उस समय भी लगभग स्थिति ऐसी थी। और ये जीव होते हैं, ये जीव बहुत काम के होते हैं। अभी एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में ये निकल के आया है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो विद्युत ये चुंबकीय जो वेव्स होती है, ये आकाश में जाती आती रहती है, तो उसके कारण बहुत से बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो माइक्रोब्स का क्या उपयोग है अभी पता लगा है, कुछ साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या बात। और वो एब्जॉर्ब करते हैं। एक हमने जब भी कॉन्फ्रेंस की थी उदयपुर के अंदर, उसमें एक पेपर उसने दिया था, उस पेपर में लिखा था कि शायद मेरे को नंबर पूरा याद नहीं है, लेकिन 10 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वो जीव एब्जॉर्ब करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड, ये मतलब नंबर मेरे को शायद वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा, पर मोस्ट प्रोबेबली यही नंबर है कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को वो जीव मतलब अपने खुराक की तरह लेते हैं, जैसे अपन ऑक्सीजन लेते हैं, वो जीव उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। 10 बिलियन 10 अब्ज टन 10 અબજ ટન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ। સાંભળજો, અત્યારે ગરમી વધે છે, પૃથ્વી મહાવિનાશ તરફ જઈ રહી છે, એના કારણમાં મુખ્ય કારણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે। અને એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ 10 અબજ ટન જે જીવો ખાઈ જતા હતા, અમે એ જીવોને ખાઈ ગયા। और जितना आप टीवी देख रहे हो, ये मोबाइल देख रहे हो, उससे वो जो वेव्स आ रही है, वेव्स के कारण वो माइक्रोब मर रहे हैं।
ઓહો हमको ये તરંગ છે ને કે જે મેગ્નેટિક ચુંબકીય તરંગો એના કારણે જે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આ ટેલિવિઝનની સિરિયલ કે ઇન્ટરનેટ જાય છે એ તરંગોના કારણે જીવો એટલા સૂક્ષ્મ છે કે એ તરંગોને કારણે મૃત્યુ પામે. એટલે મોબાઈલ વાપરો છો એમાં જે ફોન આવે છે, ટીવીમાં તરંગો આવે છે, એ તરંગોની જે આવજા થાય છે એમાં એ તમામ જીવો હિંસા થઈ જાય છે. એના કારણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પડ્યો રહે છે અને એ આપણા સૌના जान लेवा बने से. और इसके लिए इलाज क्या है? इलाज ये है कि जो हमारे 5 महाव्रत हैं, अहिंसा सबसे पहला उसके अंदर, तो अहिंसा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करने की इतनी ज्यादा आवश्यकता है, इतनी ज्यादा आवश्यकता है कि मैं आपको क्या कहूँगा, तो जितना हम जल्दी इसको करेंगे हम अपने बच्चों को सुखी देखेंगे, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे बच्चों पे होने वाला है, हो रहा है. मतलब हमारे बच्चों, हमने जो हालत कर दी है हमारे बच्चों को, मतलब जो हम दे रहे हैं, उपहार देते हैं बच्चों को, क्या दे रहे हैं? एक खराब धरती हम दे रहे हैं. तो ये बिल्कुल सही नहीं है. हमको जल्दी से जल्दी इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है. किया जा सकता है, इसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत है, योजना बनाने की जरूरत है. तो हम आचार्य गुरुकुल के उखरना साहब, हम तो अभी आपको सुन करके हमको ऐसा लगता है कि एक बार फिर आपका यहाँ पदार्पण हो और स्पेशल 2-3 घंटों की चर्चा और आपकी जो वैज्ञानिक अभिगम से जो आप बात कर रहे हैं वो सबको मालूम पड़े. तो कभी एक ऐसा समय निकाल कर आप और आपके और भी जो साथियों, संजीव भाई शर्मा है, नरेंद्र भाई भंडारी जी है, आप मिलकर के हम तो बोलेंगे, हमारी बात तो चलती है, लेकिन जब इतने बड़े पद पे, ओहदे पे रहकर के आपकी जब साइंटिस्ट होने के बाद भी अनुभूति है, ये जब लोग सुनते हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ रहा है और बहुत फर्क पड़ेगा. तो कोई ऐसा आयोजन मैं आपसे सब बधाने कहूँ છું, કંઈક એવું આયોજન કરીએ આપણે જેમાં આપણે કંઈક જો અત્યારે વિચાર આવે છે મને, બધા તમે લોકો આયોજન કરો, અમારા માથે નાખતા નહીં, તમે કંઈક એવું આયોજન કરો જેમાં આપણે કોઈક પારણા ભવન જેવું લઈએ, 2-3 દિવસ સેશન કરીએ, આખા પાલિતાના તમામ ગૃહ ભગવંતો અને તમામ આરાધકોને બોલાવીએ આપણે અને એમની સામે એક ડિબેટ પણ ચાલે, મહારાજ સાહેબ પણ બોલે, સાયન્ટિસ્ટ પણ બોલે, એક ચર્ચાઓનો ખુલ્લો દોર મુકાય અને એ રીતે કંઈક વિચારણાઓ થાય, તમને જ્ઞાન મળે. અમે માત્ર આગમનું બોલીએ છીએ. આજનો કાળ કેવો છે કે સાયન્ટિસ્ટ બોલે તો આજે મને બહુ આનંદ છે, ખૂબ ખુશી થાય છે કે આજે એક વૈજ્ઞાનિકના હોદ્દેથી પોતે એમ બોલીને ઈસરોનો બેનર છે અને હું બોલું અને વજૂદ હોય છે, આટલું ધ્યાનમાં હોય અને પછી પોતે બોલે છે. આવી અદ્ભુત વાતો કદાચ આપણને સાંભળવા મળશે. આ તો સમય हो रहा है. एक और आपको बात बताना चाहता हूँ. આજે કાલે રાખીશું. नहीं, ये हमारा कल रखेंगे. अभी 5-7 मिनट आप बोलिए, हमारा बंद रखते हैं आज. हमारा कल नहीं, सच्ची बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो विज्ञान की जो वो एक वातावरण बना दिया गया कि विज्ञान सब कुछ है. अभी आप देखते हैं कि विज्ञान ने सैटेलाइट बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, मोबाइल बना दिया, ट्रकें बना दी, कारें बना दी, सब बना दिया, लेकिन बेचारा विज्ञान, मैं कहूँगा बेचारा विज्ञान क्या ऐसा क्यों? इसलिए कह रहा हूँ कि बेचारा विज्ञान एक चींटी नहीं बना पाया, एक घास की पत्ती नहीं बना पाया, क्योंकि उसमें जीव है. जीवों का विनाश तो खूब हुआ, धड़ल्ले से हुआ जीवों का विनाश. ये जो जितने विज्ञान के कारण ये चीजें बनी है, इनके कारण जीवों का विनाश तो बहुत हुआ, लेकिन विज्ञान एक जीव नहीं बना. ये विज्ञान में सबसे बड़ी खामी है. तो हमको विज्ञान की अच्छी चीजें भी देखना है और उसकी जो सीमाएं हैं वो सीमाओं को भी समझना है. तो इस बात को लेकर के दीपक चोपड़ा, उनकी एक नई पुस्तक आई है, आपने अपना नाम सुना होगा? सबने सुना है. दीपक चोपड़ा जी खुद मेडिकल प्रोफेशनल है. उन्होंने फिजिक्स के प्रोफेसर के साथ एक किताब लिखी है और उन्होंने पूरे विज्ञान के ज्ञान की क्या सीमाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो वो पुस्तक लिखी है
उस पुस्तक का शीर्षक है यू आर द यूनिवर्स। वाह वाह, उसका शीर्षक क्या है? गजब से। यू आर द यूनिवर्स। मतलब जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो अंदर है, बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जैन धर्म यही कहता है कि आत्मा में सब कुछ है, मतलब बाहर कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक पुस्तक है। एक और पुस्तक है, वो लिखी है रॉजर पेनरोज, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था गए साल, 20 साल के पहले। उनका नाम है रॉजर पेनरोज। रॉजर पेनरोज ने किताब लिखी है, उसका नाम है एम्पीरियर्स न्यू माइंड एंड लॉज ऑफ कंप्यूटर्स एंड फिजिक्स, ऐसा कुछ टाइटल है उसका। उन्होंने पूरे विज्ञान की जो सीमाएं हैं, विज्ञान के ज्ञान की जो सीमाएं हैं, वो उन सीमाओं के बारे में उसमें लिखा है कि विज्ञान के ज्ञान क्या सीमाएं हैं, उनको हमको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि विज्ञान के चक्कर में हम, विज्ञान भी अपने आप में एक अंधविश्वास हो जाए। कुछ साइंटिस्ट यहाँ तक कहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि विज्ञान भी अंधविश्वास हो जाए। तो अब वो कह रहे हैं कि विज्ञान अच्छा लगता है, एक सीमा है, पर उसके आगे जाना पड़ेगा। अभी उन्हीं की एक पुस्तक आई है जिसमें उसका नाम है, मतलब वो रियलिटी और कुछ नाम है उनकी, वही पुस्तक थोड़ा चेंज होकर अभी आई है। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे जैन दर्शन के अंदर अनंत जो होता है, इंफिनिटी, ठीक है, तो एक ही इंफिनिटी की बात नहीं की गई है जैन धर्म के अंदर, बहुत से धर्म की जो इंफिनिटीज की बात की गई है, ठीक है। अनंता 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 की बात की जाती है अपने शास्त्रों में। उस पुस्तक में जब 2-3 साल पहले, वो हमारे पास है अहमदाबाद के अंदर, उस पुस्तक में रॉजर पेनरोज कहते हैं कि एक इंफिनिटी से काम नहीं चलेगा, हमको अलग अलग इंफिनिटीज की बात करना पड़ेगा। अब वो वैज्ञानिक अभी कह रहे हैं जो जैन धर्म के आ रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्यों कह रहा हूँ। तो अब मूल प्रश्न ये है कि अब इस काम को कैसे आगे बढ़ाएं। तो हमने अभी क्या काम किया है कि एक जैसे जीतो है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो व्यापारियों का संगठन है, उसमें है जब दिगंबर व्यापारी भी हैं, ये श्वेतांबर भी हैं, सब चारों फिरकों के। उसी आधार पे हमने जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स बनाई है। तो जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स का मतलब ये कि उसमें चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, बारापंथी हो, सबके विद्वान, कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, सब उसमें जुड़े हुए हैं। आपने कुमारपाल भाई देसाई का नाम सुना होगा, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधीर शाह हैं, आपने नाम सुना होगा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम 80 लोग हैं अभी, मतलब पूरे विश्व में। उसके बाद एक सुलेख भाई हैं अमेरिका के अंदर, जिन्हें वहाँ पे 25-30 यूनिवर्सिटीज में जैन डिपार्टमेंट खुलवाए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम क्या करते हैं कि हर मंगलवार को चर्चा करते हैं अलग अलग विषय के ऊपर। तो उसमें आगम भी होते हैं, विज्ञान भी होता है, सब कुछ होता है मतलब। और हम इसकी अब योजना बना रहे हैं। उसी के आधार पर हमने पालीताना के अंदर 11 दिसंबर को आचार्य पद्मन के सानिध्य में एक कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें लगभग 35-40 साइंटिस्ट आए थे और हमने एक पालीताना घोषणा पत्र निकाला। वो पालीताना घोषणा पत्र ये था कि पृथ्वी और पर्यावरण को बचाने के लिए हमको विज्ञान और अध्यात्म दोनों चाहिए। खाली विज्ञान पर्याप्त नहीं है कि विज्ञान जो बाहरी दुनिया में जो हो रहा है उसको समझने में सहायक है, लेकिन जो अध्यात्म है, जो धर्म है, वो हमारा अंदर क्या हो रहा है उसको समझने में जरूरी है। तो दोनों का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक हम है जो मतलब विश्व की जो समस्या है क्या तो छोड़ दीजिए, अपने घर की समस्याओं का समाधान भी नहीं कर सकते। आजकल बच्चे जैसे हमारा कहना नहीं मानते हैं, या बच्चे वो बहुत टेंशन में रहते हैं, वो रहते हैं क्योंकि वो धर्म से दूर होते जा रहे हैं। हम छोटे देर से हमको धर्म का संदेश बताया जाता था, धर्म की बातें बताई जाती थी। तो धर्म से क्या कि दिमाग को ठीक रखा जाता है, और जो बाहर का है उसके लिए विज्ञान। ये सम्मेलन किया था। उसके बाद हमने एक उसी के आधार पर एक कॉन्फ्रेंस की थी उदयपुर में। एक डॉक्टर दौलत सिंह की कोठारी थे, आपने शायद नाम सुना होगा, मतलब बहुत पूरा जैसे विक्रम साराभाई हैं अपने वैसे है, डॉक्टर दौलत सिंह की कोठारी थे। उन्होंने 50 साल पहले किया था, कहा था, मतलब और कब कहा था कि जब जापान के ऊपर एटम बम गिरे थे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, और इतनी हत्या हुई थी, तो वो विज्ञान का एक विभत्स रूप था, विज्ञान का सबसे खराब रूप था, जिसमें करोड़ों लोग, लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपाहिज हो गए। वो इतने उससे बड़ा डर गए, घबरा गए, दुखी हो गए, उन्होंने पुस्तक लिखी उसके ऊपर।
और उस पुस्तक के बाद में वो हर व्याख्यान में बोलते थे कि केवल विज्ञान पर्याप्त नहीं है, विज्ञान के साथ धर्म को जोड़ना पड़ेगा। तो उसको आधार में लेते हुए हमने वो पालिताना घोषणा पत्र निकाला। उस घोषणा पत्र को आगे मतलब ले जाने के लिए, उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए 3 दिन की हमने कॉन्फ्रेंस की थी। उन्हीं की याद में स्थापित एक संस्थान है उदयपुर में, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें इसरो के भी साइंटिस्ट आए थे, 7-8 इसरो के साइंटिस्ट आए थे। उसमें जैन धर्म के विद्वान भी आए थे, उसमें सनातन धर्म के विद्वान भी आए थे और एक मुस्लिम स्कॉलर का भी आने का था उसके अंदर मतलब। तो हमने उसके ऊपर बताया, एक योजना बनाई कि हमको क्या करना चाहिए। तो अब आप कहोगे, आप विश्वास नहीं करोगे कि ये कि हमको पता ही नहीं कि ऐसे जीव मरते हैं। जैसे हिमालय के ग्लेशियर जो है जिससे पानी आता है गंगा नदी के अंदर, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो इसरो के अंदर हमारा एक साइंटिस्ट है, वो ये काम कर रहा है कि वो सैटेलाइट डेटा से देखता है कि मतलब ग्लेशियर आज से 10 साल पहले कितना बड़ा था ग्लेशियर और आज की तारीख में वो ग्लेशियर कितना छोटा हो गया था, कितना पिघला, उसकी पूरी एक एटलस बनाई है। जितने हिमालय के ग्लेशियर है उन सब एटलस बनाई है और एटलस को आप देखोगे, आपको मतलब वो फोटो दिखाएंगे कि भाई 10 साल पहले ग्लेशियर इतना बड़ा था, आज की तारीख में वो ग्लेशियर इतना पिघल गया है और इतना छोटा हो गया था कि वो पानी हो गया। दूसरा हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उसके ऊपर एक अलग वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उसमें सैटेलाइट डेटा का भी यूज हो रहा है। एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने पूरे जो भारत के तालाब हैं और जो अपने बड़ी बड़ी नदियां हैं मतलब उनके फोटोग्राफ लिए हैं और बाद में कहा कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले उनमें वो कितने बड़े थे और आज की तारीख में वो कैसे हो गए। तो आज की तारीख में वो आया है कि वो छोटे हो गए, यानी पानी की मात्रा कम हो रही है। ये आज की तरह आप जब फोटो देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। तो ये इसी ढंग से जो ओजोन लेयर है उसके ऊपर काम किया है। इसी ढंग से अभी हमारा एक साइंटिस्ट है, वो मंगोलिया जाके आया था, उसको बुलाया था अपने यूनाइटेड नेशन वाला, उसने एक पुस्तक लिखी है कि हम कितनी जमीन को बंजर बनाते जा रहे हैं, कितनी जमीन को अपने रेगिस्तान में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। उसका उसने एस्टिमेट किया, उसके फोटो दे रखे हैं कि पहले इतना था, आज की तारीख में ऐसा है। उसको आधार पर पे अभी पूरे यूनाइटेड नेशन सब चिंता कर रहे हैं कि इसको क्या करें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैन धर्म उनको सही रास्ता दिखा सकता है। हमको इसको बहुत बड़े स्तर पे प्रचार करने की जरूरत है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। तो एक योजना अभी हम कर रहे हैं, 7 साल से हम काम कर रहे हैं। 2015 से शुरू किया था कि 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है, गांधी जयंती को 2007 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी यूनाइटेड नेशन ने विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया था। कब किया था? 2007 में। और मेरे को आश्चर्य है कि हमारे जैनियों को पता नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जैनियों को पता नहीं है कि हमने इस चीज का प्रचार प्रसार नहीं किया। और गांधी जी ने अहिंसा किससे सीखी? गांधी जी ने अहिंसा सीखी श्रीमद राजचंद्र, ठीक है, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है कि ऐसा है। तो जैन धर्म के अहिंसा का बीज तो विश्व में बो दिया गया है। अभी गांधी जी ही सिर्फ एक महापुरुष हैं भारत के जिनकी विश्व के अंदर सबसे ज्यादा देशों के अंदर उनकी मूर्ति लगी हुई है, सिर्फ गांधी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हम 7 साल से कोशिश कर रहे हैं विश्व अहिंसा दिवस मनाने की। गुजरात यूनिवर्सिटी के हमने मनाया था, वहाँ पे कुछ बच्चों को हमने उनको ऐसे कंपटीशन करवाया था वहाँ पे 2015 के अंदर। उस समय आचार्य नम्र मुनि महाराज साहब के आशीर्वाद से काम किया था। आप आश्चर्य करेंगे, मैं एक बात और कहने जा रहा हूँ, वो ये है कि उसमें 250 बच्चों ने भाग लिया था और 250 बच्चों के अंदर जो फर्स्ट प्राइज वगैरह जो आते प्राइज देते हैं, तो एक फर्स्ट प्राइज देने वाला लड़का, उसका नाम था सद्दाम हुसैन, वो मुस्लिम था लड़का। उसको प्राइज दिया और उसके बाद हमने उसको कहा कि तुम बोलो तुमको क्या लगा ऐसे कंपटीशन में। तो उसने कहा कि मैंने इस ऐसे कंपटीशन के बाद गांधी को पढ़ना शुरू कर दिया। क्या बात।
तो ये क्या है कि हम करेंगे प्रयास तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, पर बहुत बड़ी योजना बनाने की आपका ये कहना है, मैं फिर से 1 मिनट में कह देता हूँ, आपका ये कहना है कि सारी सृष्टि की सारी व्यवस्थाएं अभी तिलमिला गई है, बिगड़ने जा रही है, पानी जमीन में गहरा जा रहा है, जमीन बंजर हो रही है, श्वासोश्वास दूषित हो रहे हैं, प्रजातियां जीवन की लुप्त हो रही है, हमारी जिंदगी धोखे में है। लेकिन ऐसी हजारों लाखों समस्याएं है, उन सारी समस्याओं का एक ही जवाब है। अगर मैं आपकी भाषा कहूँ तो जैन जीवन शैली से जैन जो जैन जीवन शैली है, वो जैन जीवन शैली को अगर हम अपना ले, हम जैन तो पहले अपनाए, पंच महाव्रत हम अच्छे पालन करें और सावक सावक का आचार पालन करें और इस तरह से जैन जीवन शैली आप अच्छी तरह से निभाए तो ये सारा विनाश अभी रुक सकता है या बंद भी हो सकता है, ये संभावना है। और इसलिए पोखरना साहब जो अंतिम बात कहने जा रहे हैं वो ये है कि हमने विज्ञान तीर्थ संकेश्वरपुरम या 11/12/22 को सारे वैज्ञानिक वहां पर आए थे और बंधु त्रिपुटी गुरुदेवों की निश्रा के अंदर विज्ञान प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया, उस वक्त सबसे पहला अहम काम ये किया था पाइतना घोषणा पत्र। तो सबसे पहला विज्ञान तीर्थ की ओर से एक घोषणा पत्र जारी हुआ, सेव अर्थ मिशन, पृथ्वी को बचाया जाए। और बचाने के लिए 75 गतिविधियां मैं चाहता हूँ मेरे पास है, एक काम करो जिनेश महाराज, 75 गतिविधियों को बैनर बना के बाहर लगवा दो। जरूर सब लोग वहां पर 75 गतिविधियां है, बना के बड़ा बैनर 10x10 का बाहर लगवा दीजिए। 75 गतिविधियां अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन बच सकता है। और वह कार्य के लिए विज्ञान के संकेश्वरपुरम की ओर से ही उदयपुर के अंदर 3 दिन का सेमिनार हुआ, जिसमें कितने साइंटिस्ट 55 સાયન્ટિસ્ટ એમાં આવેલા હતા અને એમાં પૃથ્વી બચાવવા શું કરવું જોઈએ એની ખૂબ ચર્ચાઓ થઈ હતી। આજે એમનું કહેવું છે કે 2 ઓક્ટોબર 2007 સંયુક્ત રાજ્ય આખા વિશ્વએ એ ઘોષિત કર્યું છે કે અહિંસા દિવસ મનાવવો, ક્યારે 2007 પણ કોઈ એક્શન નથી, ભારતમાં એક્શન નથી અને અમારા જૈનોમાં એક્શન નથી। તો કંઈક એવું કાર્ય 2 ઓક્ટોબર આવે છે, આ સરકારે જાહેર કરેલું છે, તો આપણે કંઈક 2 ઓક્ટોબરે વિશેષ કાર્યો આખા વિશ્વમાં થાય, આવા વિચારો પણ કરીને એમાં કંઈક ને કંઈક ગતિવિધિમાં આપણે આગળ વધવું જોઈએ। મારું એમ માનવું છે કે આ રીતે આ વૈજ્ઞાનિકો આજે એક ઊભા છે સામે, આપણે કાલે હજારો વૈજ્ઞાનિક કહી રહ્યા છે, 1000 વૈજ્ઞાનિક ભેગા થાય દર વર્ષે અને એ આત્મા ઉપર પોતાના નિબંધ સબમિટ કરે છે। આત્મા ઉપર 1000 વૈજ્ઞાનિક આ કામ કરે છે, આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે શું કરીએ છીએ? તો શા માટે હું કહું છું સૌથી મોટામાં મોટો આજે કોઈ પ્રમુખ ધર્મ છે તો વિજ્ઞાન અને ધર્મ બે ભેગા થાય અને બે ભેગા થઈને આખા વિશ્વને બચાવવાનું કામ કરે, આ સૌથી મોટો ધર્મ છે। આ કામમાં આગળ વધવા માટે હવે વિનંતી કરી છે આપણે એમને, હું વાતચીત કરી લઉં છું। આમ તો એવરી ડે સંપર્કમાં જ હોય છે અને ઘણા બધા કામો આ રીતે આગળ ભવિષ્યમાં કરવા છે એ માટે કરી રહ્યા છીએ। તો ક્યારે આપ પધારી શકો છો અને આપ બધા મને મળો, આપની ઈચ્છા હોય તો આગળ આવો, આપ બધા આવો આગળ, પારણા ભુવન લો, મંડપ બાંધો, તમામ ગુરુ ભગવંતોને બોલાવો અને આવા साइंटिस्टो તમે કહો तो कितने 10, 15, 20, 25 कितने साइंटिस्ट आ सकते हैं? अगर साइंटिस्ट को इनवाइट करना है हमको, कितने आप बुला सकते हो? आपका तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, 50 साइंटिस्ट આવી શકે છે। 50 સાયન્ટિસ્ટ આવી શકે છે તો આવું કંઈક કરી શકીએ, આવું કંઈક કરી શકીએ આપણે કરવું જોઈએ। આવું કદાચ કોઈ કાર્ય ક્યાંય થયું નથી, કોઈ કરતું નથી, કરવા જેવું છે। શું આવું કાર્ય કરવું જોઈએ? ઊંચો હાથ કરો। 50 સાયન્ટિસ્ટો બોલાવીને આ ધર્મ ચર્ચા કરવી જોઈએ, માતાઓ નહીં, આવી કોઈ ચર્ચા કરવી જોઈએ આપણે।
ઊંચો હાથ કરો બધા. બધા સાથે છો? બધા આવશો તન મન ને ધનથી? તો કઈ વિચાર ના આવે, એક મીટિંગ લઈ લો પહેલા. મંત્રેશ મહારાજ સાહેબ, હવે આ લોકોને મળીને એક મીટિંગ લઈ લો અને પછી એક મજબૂત કામ કરીએ આપણે, અને એ રીતના આપણે આગળ વાત કરશું. हाँ ये पूरे पूरे विश्व की जब बात हो रही है तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ उसके 192 देश उसके सदस्य हैं. तो अगर हम कोई शुरुआत करते हैं तो वो 192 देशों के अंदर जाएगी. तो हमको ऐसी योजना बनाना है कि जो आने वाला 2 अक्टूबर है उसको 192 देशों के अंदर इसकी जागृति आए, कम से कम से अहिंसा क्या होती है ऐसी हमको योजना बनानी चाहिए, और वो योजना बनाई जा सकती है. मेरा पूरा विश्वास है कि हम अगर साथ में इकट्ठे हो जाए ऐसी योजना बनाई जा सकती है. उसका सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूसरे सेक्टर से दूंगा आपको कि पेप्सी और कोका कोला जब भारत में आए थे तो आने से पहले उन्होंने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की. भारत की पूरी स्टडी की थी, किस किस जिले में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सबको स्टडी करके पूरी स्ट्रेटजी बना के प्लानिंग बना करके और पूरे देश में उन्होंने कोका कोला पेप्सी पिला दिया सबको. तो ऐसी स्ट्रेटजी हमको इसके लिए बनानी है कि 192 देशों के अंदर आने वाले 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस का बीजारोपण किया जाए. और क्यों कह रहा हूँ मैं, बार बार क्यों कह रहा हूँ मैं आपको इस चीज को, ये इतनी गंभीर समस्या है, इतनी गंभीर समस्या है, जितना हम जल्दी करेंगे वो भी है जो धीरे खराब हो चुका है, इतना विनाश हो चुका है. जितना जल्दी करोगे वो भी धीरे होगा, उतना विनाश हो गया है. मतलब आज ही जागना है आपको, अभी इस घड़ी બધા સંકલ્પ કરો. આજે બધા પારણા ભવનનું એક્ઝિબિશન જોવા જશો. ઊંચો હાથ કરો. કોણ જશે? પારણા ભવન એક્ઝિબિશન અહિંસા માટે આ બધા કરી રહ્યા છે, આટલી મહેનત કરે છે. इस तरह की पुस्तकें इसमें करीब करीब 100 बैनर बनाए. इसमें 80 बैनर से जो हमने यहाँ प्रदर्शनी में कुछ लगाए हैं, सिलेक्टेड बैनर. और ये सब इसके लिए है कि अबोल जीवों की हिंसा कम हो और धीरे धीरे मतलब विश्व हिंसा मुक्त बने, उसके लिए हिंसा मुक्त विश्व के ऊपर ही ये कार्य कर रहे हैं. और पिछले 4 साल से ये कार्य जारी है. और इसमें काफ़ी जगह एग्जीबिशन लगाई, अभी उदयपुर में भी लगी, वहाँ 300 स्कूल्स में अभी चल रहा है कार्य. और अभी अहमदाबाद में भी काफ़ी अच्छा लगा था, और शंकेश्वरपुरम में भी इसकी एग्जीबिशन लगी थी. और भी यहाँ पे अभी एग्जीबिशन में कई लोग आए हैं जिन्होंने बोला है कि हमारे स्कूल्स में और लाइब्रेरीज में ये लगानी है. और यहाँ भी कुछ महाराष्ट्र ने बोला है कि हमारे यहाँ लगाना है, तो उनके लिए भी हमारा अभी प्रयास जारी है. बहुत बहुत धन्यवाद. पधारिए. બધા પોતાના સ્થાન ઉપર જ્યાં છો. હા, એક મિનિટ. બંધુ ત્રિપુટી ગુરુદેવોના મોટા ભાઈ સંસ્કારી કાકા અમારા સાગરચંદ્ર મહારાજ સાહેબ સંસ્કારી પિતા સત્વચંદ્ર સાગરજી મહારાજ સાહેબનું સ્વાસ્થ્ય નાદુરસ્ત છે. એમના શ્વાસ સંવર્ધન હેતુ અત્યારે સમની વિહારની અંદર ભુવ સત્કર્મ પૂજન દ્વારા અભિષેકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમે ત્યાં જઈએ છીએ. બધા પધારો, એક અવસ્થગરમનો જાપ કરીએ, અભિષેક કરીએ, અને અત્યારનું ઓપરેશન ચાલુ છે તો એ સક્સેસ જાય અને એ સ્વસ્થ બની જાય. બધા ત્યાં પધારવા ધ્યાન રાખજો. આજનો કુંભ ક્યાં છે? આજનો કુંભ તખતગઢમાં છે. અપૂર્વ ઉત્સાહ તખતગઢ વાસીઓનો છે. ટાઈમ છે નહીં, બધા ત્યાં જવા માટે ધ્યાનમાં રાખજો. આ આગમ આજે જેનું પણ છે એ આપણે કાલે પણ ચાલુ રાખશું. ચોથું સમવાયન આગમ